السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی انتخابی مہم عروج پر۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے گھانسی بازار اور شالی بنڈا ڈویژن کا کیا پیدل دورہ، کئی انتخابی جلسوں سے خطاب۔ چارج شیٹ وزیر اعظم مودی کے خلاف پیش کی جانی چاہیے، ریاستی وزیر کے ٹی آر کا بی جے پی پر جوابی وار۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی چندرائن گٹا حلقے کے مختلف ڈویژنز میں انتخابی مہم، مقامی عوام سے ملاقات، مجلسی امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل۔ ملک پیٹ، بہادر پورہ اور دیگر حلقوں میں مجلسی قائدین کی جانب سے بلدی انتخابات کے سلسلے میں مہم جاری، گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقات۔ خفل شکنی کی وارداتوں میں ملوث بین ریاستی ملزم گرفتار، کئی ریاستوں میں ہوئی وارداتوں میں ملوث ہونے کا انکشاف، ایس او ٹی بالا نگر زون کی کارروائی۔ پہاڑی شریف پولیس نے موٹر بائکس کے سرقے ملوث 3 رکنی ٹولی کو کیا گرفتار، 10 موٹر بائکس کی گئی برآمد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی و فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی جانب سے حلقے کے مختلف ڈویژنز میں پیدل دورہ کرتے ہوئے بلدی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت اکبر اویسی نے منگل کو چندرائن گٹا ڈویژن اور بارکس ڈویژن کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کیا اور مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے اپیل کی کہ مجلس کے بلدی امیدواروں کو کامیابی سے ہمکنار کریں۔ اس موقع پر مجلسی امیدوار کے نمائندے بھی اکبر الدین اویسی کے ہمراہ موجود تھے۔ اکبر الدین اویسی نے کئی مقامات پر عوام سے خطاب بھی کیا اور موجودہ حالات پر روشنی ڈالی اور بارگاہ رب العزت میں امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کی۔ آپ سب کا صاف ہو جائے ٹی آر ایس ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ نے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کی جانب سے ٹی آر ایس حکومت کے خلاف پیش کی جانے والی چارج شیٹ کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے بتایا کہ اس چارج شیٹ کو وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف پیش کیا جانا چاہیے، جنہوں نے ملک کے ہر شہری کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے جمع کرنے کا وعدہ کیا تھا اور ملازمتیں فراہم کرنے کے سلسلے میں دھوکہ دہی کی۔ انہوں نے بی جے پی قائدین سے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت کے اچھے اقدامات، جن میں مفت برقی سربراہ کرنے، آسرا وظائف اور امیزون کمپنی قائم کرنے کے علاوہ ہر شہری کو ترقی دینا، اگر غلطی ہے تو ہمیں چارج شیٹ منظور ہے۔ వాదోపవాదాలు జరుగుతున్న విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు। ముఖ్యంగా గోబెల్స్ కజిన్ బ్రదర్స్ మా బీజేపీ సోదరులు నోటికొచ్చినట్టు అర్ధ సత్యాలు, అసత్యాలు, పచ్చి అబద్ధాలు ఏ రకంగా ప్రచారం చేస్తున్నారో కూడా అందరికీ తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది। بلدی انتخابی مہم کے دوران شہر کے بیشتر حلقے جات میں مجلسی امیدوار جن ڈویژن سے مقابلہ کر رہے ہیں، وہاں پر عوام میں غیر معمولی جوش دیکھا جا رہا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے دوروں نے انتخابی مہم کو اور بھی گرما دیا ہے اور منگل کو بیرسٹر اویسی نے حلقہ اسمبلی چار مینار کے گھانسی بازار اور شالی بنڈا ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے گھر گھر جا کر ملاقات کی۔
بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کا مقامی عوام کی طرف سے والہانہ استقبال کیا گیا اور جگہ جگہ گل پوشی کی گئی۔ بیرسٹر اویسی نے گھانسی بازار سے مجلسی امیدوارہ پروین سلطانہ اور شالی بنڈا سے مصطفیٰ علی مظفر کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ مجلسی کارکن اور صدور معتمدین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بلدی حلقے شالی بنڈے میں جہاں غیر معمولی ترقیاتی کام انجام دیے گئے ہیں۔ حلقہ اسمبلی بہادرپورے میں مجلسی رکن اسمبلی محمد معظم خان کی جانب سے مختلف ڈویژنز کے امیدواروں کے لیے انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت محمد معظم خان نے جہانما ڈویژن کے مختلف علاقوں میں مجلسی امیدوار مقتدر بابا کے حق میں انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اس موقع پر ڈویژن کے امیدوار مقتدر بابا کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ بہادرپورہ حلقے ہی کے بلدی ڈویژن کشن باغ میں مجلسی امیدوار حسینی پاشا نے گھر گھر پہنچ کر انتخابی مہم چلائی اور مقامی عوام سے اپیل کی کہ پتنگ کے نشان پر اپنا ووٹ دیتے ہوئے مجلس کو کامیاب بنائیں۔ اس موقع پر بھی سرگرم مجلسی کارکنان موجود تھے۔ ایک تاریخ کے دن حسینی پہ کونسلر ہے ایم کے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کی اعظم پورہ ڈویژن میں رکن اسمبلی احمد بلالہ کی صدارت میں چنچل گڑا ڈیری فارم انجمن کے پاس گروپ میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی احمد بلالہ نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین تمام طبقات اور مسالک کے اتحاد کا گہوارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی اتحاد میں ہماری طاقت ہے اور صدر مجلس بیرسٹر اویسی سماج کے ہر طبقے کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک مضبوط طاقت بن گئی۔ احمد بلالہ نے مقامی عوام سے مجلسی امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی اپیل کی۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں کیے گئے ترقیاتی کاموں، سیلاب اور لاک ڈاؤن کے دوران پہنچائی گئی امداد، روزگار سے مربوط تربیتی کورسز، پکوان گیس سلنڈر اور دیگر فلاحی کاموں سے بھی عوام کو واقف کروایا گیا۔ جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مزید انتخابات کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلی تاریخ کے دن پولنگ ہے۔ میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ پہلی تاریخ کے روز آپ نکل کر اپنا ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں دیجیے
मजलिस आपकी और हमारी मतायजीज जमात है, जमात का साथ दीजिए, जमात से ही सब कुछ है। मैं इस ग्रुप मीटिंग के तहत आप लोग के सामने ये चीज कह देना चाह रहा हूं कि तमाम लोग इसको वाज़ेह तौर पर समझ जाए। अगर किसी को कोई चीज बुरी भी दिखी तो उसको डायरेक्टली मेरे से मिलकर भी कह सकते हैं। आपके दरमियान में रुकने असेंबली की हैसियत से, एक कैंडिडेट की हैसियत से आपके दरमियान में आया। यहाँ पर कई चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे लिए वाज़ेहाना तौर पर काम किया और जिन्होंने खुलकर मेरे से मुखालिफत भी की, लेकिन उनको पूरा हक था मुखालिफत करने का। अगर से फिर जमात का साथ दे रहे हैं तो मैं ये चाहूंगा, उनसे ये उम्मीद करूंगा कि वो खुलकर जमात का साथ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने मंगल को फलकनुमा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में मजलिसी उम्मीदवार ताराबाई के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मजलिसी उम्मीदवार के नुमाइंदे मोतीलाल नायक के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली ने कई मकामात पर रुक कर आवाम से मुलाकात की और अपील की कि 1 दिसंबर को वोटिंग के दिन पतंग के निशान पर मोहर लगा कर अपना वोट डालें। उन्होंने आवाम को बताया कि इस मरतबा बैलेट पेपर के जरिए अपना वोट डालना है। हल्का मलकपेट के आजमपुरा डिवीज़न में मजलिसी उम्मीदवारा आयशा जहां नसीम की इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम की गैर मामूली तायद नजर आई। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने रसूलपुरा, विनायक विधि, आजमपुरा ABC क्लास के इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से घर घर जाकर मुलाकात की। आवाम ने मजलिस की तरफ से हल्के मलकपेट में किए गए तरक्याती कामों का एतराफ़ करते हुए भारी अक्सरियत से मजलिसी उम्मीदवारा को कामयाब बनाने का अहद किया। मलकपेट में मजलिसी उम्मीदवारों के दौरों के दौरान गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी का GHMC इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर जारी किया। बाद अज़ां कौमी तर्जुमान ऑल इंडिया कांग्रेस डॉक्टर श्रवण कुमार ने इंतखाबी मंशूर में किए गए ऐलानात से वाकिफ़ करवाते हुए बताया कि तलबा, ख़वातीन और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को मुफ्त RTC बस सर्विस और मेट्रो रेल के अलावा MMTS में सफ़र करने के इक़दामात किए जाएंगे, जबकि डबल बेडरूम मकानात तामीर होने तक किराया भी अदा किया जाएगा और प्रॉपर्टी टैक्स भी माफ़ किया जाएगा। इसके अलावा 30,000 लीटर पानी मुफ्त सरबराह किया जाएगा। खानगी स्कूल्स में फ़ीस फ़िक्स की जाएगी और स्लम्स इलाक़ों को तरक्की दी जाएगी। मोटर व्हीकल टैक्स माफ़ किया जाएगा। केबल TV ऑपरेटर्स की फ़ीस माफ़ करने के भी इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से पार्टी इंतखाबी मंशूर में आवाम के मफाद में किए गए वादों और ऐलानात बिलखुसूस मुफ्त पानी की सरबराही, हजामों और लॉन्ड्री शॉप्स और धोबी घाट में मुफ्त बरखी की सरबराही, माह मार्च से सितंबर तक ऑनलाइन चालानात की मुआफ़ी और दीगर इक़दामात को इंतखाबी मंशूर में शामिल करने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया और KCR जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। SOT बालानगर जोन ने एक बैन रियासती मुलजिम को उसके साथी के हमरा गिरफ्तार किया, जो मुख्तलिफ रियासतों गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश व दीगर रियासतों में हुई खुफल शिकनी की वारदातों में मुलविस पाया गया है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार ने मीडिया को बताया कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के मुतवत्तिन 35 साला फ़हीम और 39 साला मरसलिम मुतवत्तिन अमरोहा उत्तर प्रदेश को हिरासत में लिया गया, जो चंदानगर में हुई 3 वारदातों के अलावा रायदुर्गम और अमीनपुर संगारेड्डी में हुई एक वारदात में भी मुलविस पाए गए हैं। उनके कब्जे से 36 तोला तिलाए जेवर, 30,000 रुपये नगद रकम के अलावा दीगर अशिया बरामद की गई। అది ఇంకా మనం ఎన్క్వైరీ చేయాలి. మనం ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనకు తెలియదు, వచ్చిన తర్వాత ఆయన దగ్గర వెపన్స్ దొరికిన తర్వాత మనం యూజువల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ గ్యాంగ్స్ అంటే యూజువల్లీ మనం గోల్డ్ ఎక్కడ అమ్మి ఉంటారని చెప్పకుండా ఈయన వెపన్స్ దొరికిన తర్వాత ఒకసారి వెపన్స్ మనం రికవర్ అయిన తర్వాత
ఈయన ఎవరు ఎట్లా అని చెప్పి లోకల్ పోలీసు మనం ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ చేసి ఇదంతా బండారం బయటపడింది. నేను స్టే చేస్తాడు, ఎందుకంటే వచ్చిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ చేయరు కదా, ఆయన రెక్కి చేసుకోవాలి, వాళ్ళు ఐసోలేటెడ్ కాలనీస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, లాక్ హౌసెస్ చూడాలి, ఏ టైంలో పోతే బాగుంటుంది చెప్పి ఆయన రెక్కి చేసుకోవాలి కదా. రెక్కి చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆయన అక్కడ దొరికిన బంగారం పట్టి మళ్ళీ ఆయన ప్లాన్ ఉంటుంది. అక్కడ ఇక్కడ బాగా బంగారం దొరికింది అనుకోండి, తర్వాత నెక్స్ట్ అనుకున్నారు స్టేట్ లో గో టు గోవా, కర్ణాటక లేదా మహారాష్ట్ర వెళ్ళిపో, అక్కడ నుంచి రిటర్న్ వెళ్ళిపోతారు. पहाड़ी शरीफ पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरखे मुलविस 3 रुकनी टोली को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 10 मोटर बाइक जुमला मालियती 2,88,000 रुपये बरामद किए गए। हिरासत में लिए गए अफराद में 24 साला शेख हबीब साकिन कुत्तापेट, 26 साला मोहम्मद नईम कुरैशी साकिन जलपल्ली, 24 साला मोहम्मद आसिफ कुरैशी साकिन पहाड़ी शरीफ शामिल हैं। मुलजिमीन पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद के अलावा मीरपेट, वनस्लीपुरम, एलबी नगर, संतोष नगर में हुई बाइक चोरी के वाक़यात में मुलविस पाए गए हैं। बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र आवाम में पुलिस के तईं एतमाद को बहाल करने और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जगाने की गर्ज से सिटी पुलिस की जानिब से हसास इलाक़ों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत छतरीनाका पुलिस स्टेशन हदूद के उपुगड़ा डिवीज़न में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। DCP साउथ जोन गजारा भोपाल, ACP फलकनुमा डिवीज़न M.A. मजीद ने निगरानी की, जबकि फलकनुमा और छतरीनाका के सर्कल इंस्पेक्टरान भी इस मौके पर मौजूद थे। रच्चागुंडा पुलिस की जानिब से भी मुख्तलिफ इलाक़ों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि आवाम में पुलिस के तईं एतमाद बहाल हो सके। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस महेश भागवत की निगरानी में नीलमेट, कुशाईगुड़ा और जवाहर नगर हदूद के वार्ड में तकरीबन 5 किलोमीटर फ्लैग मार्च किया। इस फ्लैग मार्च में TSSP प्लाटून, सिटी आर्म्स रिजर्व पुलिस के अलावा दीगर फोर्सेस ने भी हिस्सा लिया। మా దాంట్లో 17 వార్డ్స్ ఇక్కడ మల్కాజిగిరి జోన్ సంబంధి, 13 వార్డ్స్ అక్కడ ఎల్బీ నగర్ జోన్. ఈరోజు ఈ మల్కాజిగిరి జోన్లో స్పెషలీ జవహర్ నగర్, నేరడ్మట్, తర్వాత కుషాయిగూడ ఈ 3 పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న 4 వార్డ్స్కి ఫ్లాగ్ మార్చ్ మనం కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఫ్లాగ్ మార్చ్కి భాగంగా మౌంటెడ్ ప్లాటూన్, తర్వాత మన TSSP, తర్వాత ఆర్మ్ రిజర్వ్, సివిల్ పోలీస్, తర్వాత దాంట్లో విమెన్ పోలీస్ కూడా భాగం. దానికి దాదాపు 200 మెంబర్స్తో ఈ మార్చ్ పాస్ట్ మనం అరేంజ్ చేశాము. దానికి లీడింగ్గా మన ER హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి బ్యాండ్ ప్లాటూన్ వాళ్ళు లీడ్ చేశారు. ఈ ఫ్లాగ్ మార్చ్ వలన ఈ ఏరియాలో ఉన్న ప్రజలు కాన్ఫిడెన్స్ రావాలా ఉద్దేశం అది ఫ్లాగ్ మార్చ్కి. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी कायदीन की तरफ से हैदराबाद की वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्याई बाशिंदों के नाम होने पर पलटवार किया है। गुज़िश्ता रोज़ आज़मपुरा डिवीज़न में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर इतनी बड़ी तादाद में रोहिंग्याई बाशिंदे वोटर लिस्ट में हैं तो वज़ीर दाखिला अमित शाह क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास दिखाने और बताने को कुछ नहीं है, इसलिए मजलिस पर तनकीदें की जा रही हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं, नौजवानों को बता रहा हूं कि ये मजलिस की तारीख है कि कैसे 1960 के इलेक्शन में तारीख बदल दी और इसी इलेक्शन में ये बल्दिया का इलेक्शन जरूर बरखी, बल्दी, आबरसानी के मसाइल को करने के लिए वोट देना है। ये इलेक्शन में आपको कॉर्पोरेटर बनाने के लिए वोट देना है, मगर याद रखो ये इलेक्शन आपको यकजहती पैदा करने के लिए भी देना है। ये इलेक्शन आपको इसलिए भी वोट देना है कि जब हमारे घर पर कोई बातिल ताकतों का तूफान आकर दस्तक देगा तो उस इत्तेहाद की ताकत पर, अपनी क़यादत की ताकत पर उन बातिल ताकतों के तूफानों का रुख मोड़ सकेंगे। इसीलिए आपको वोट देना है। इस इलेक्शन की अहमियत को समझिए। इसीलिए आज आप देखते हैं कि बल्दिया का इलेक्शन है, मगर TRS कहती है कि हमारा मजलिस से कोई रिश्ता नहीं है, हमको भी कोई शौक नहीं है किसी से खामखा रिश्ता करने का। आपने निस्बत भिजाई थी, हमने कबूल किया था, आपको पसंद नहीं, हमको भी पसंद नहीं।
टीआरएस के पावर मिनिस्टर ने कह दिया, जगदीश्वर रेड्डी कह रहे, बीजेपी का हवाला देकर पूछ रहे कि बीजेपी वालों बताओ ओवैसी के साथ मोदी की मीटिंग कैसी रही। ये कांग्रेस तो खैर अब बड़ा पूछता हुआ चिराग भड़क रही हूं। तो कांग्रेस के एक एमपी है मलकाजगिरी के, अब बहुत अक्लमंद है माशाअल्लाह, उनको थम्स अप भी नहीं बोल सकते। देवशाह एक वीडियो मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाए कि असदुद्दीन ओवैसी सिकंदराबाद के मौजूदा एमपी और मौजूदा वजीर वजारत दाखिला के साथ राजभवन में खड़े होकर इन दोनों बात कर रहे, दोनों बोले साजिश कर रहे। अरे थम्स अप, मेरे को क्या कोई जगह नहीं मिली साजिश करने को, राजभवन मिलती। मैं बुला लेता मलकपेट को, आओ आजमपुरा में किसी घर पे बैठ के मिल लेते, मगर उन्हें और मीडिया वाले भी क्या तारीफ करना, थाली बजाना, क्या करना, उन्होंने दीवानी बात कर रहे हैं, बैठ के सुन रहे। और हो सकता है मिले होंगे, आओ मिले बाबा, मगर साजिश वहां क्यों करेंगे। फिर अब बीजेपी का नाम, अब बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा बीजेपी को, इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। हैदराबाद को आ रहे तो बाबा जरा इनको अलहमदुल्ला की बिरयानी तो खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आता। अरे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आ रहे, आके बोल रहे मजलिस कोर्ट दिए तो टीआरएस को फायदा होता, मजलिस कोर्ट दिए तो कांग्रेस को फायदा होता। बीजेपी के लोग बोल रहे कि हैदराबाद में 30,000 40,000 रोहिंग्या है वोटर लिस्ट में नाम, वो असदुद्दीन ओवैसी जिना बन गए। मजलिस कोर्ट देना मुल्क के मुफाद में नहीं है, मजलिस रैपिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है, तो किसको दिखा रहे, एक मियां भाई को दूल्हे भाई को दिखा रहे। गुफ्तगू की शुरुआत मजलिस से और खत्म होती है आपके खादिम के ऊपर। मेरे भाई दाढ़ी वाइट हो गई, ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। खामखा मेरे पीछे पड़े हुए तुम लोग। हैदराबाद में हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएगी, याद रखो, खुजाओ मत, खुजाए तो खुजली हो जाती। कुछ दो मुंह को आप बोल रहे, अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे, अमित शाह सो रहे, होम मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30-40,000 रोहिंग्या के नाम कैसा है। कौमी सदर भारतीय जनता युवा मोर्चा तेजस्वी सूर्या को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एनसीसी गेट के बाबल दाखिले पर रोक दिया गया, जिसके बायस कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल नजर आया। बादअज़ां उन्होंने आर्ट्स कॉलेज के पास 1969 में तेलंगाना तहरीक में जान देने वालों को खराज पेश करते हुए बताया कि नए हैदराबाद और नए तेलंगाना के लिए जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। क़ाबिल अज़ीर रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने गन पार्क पहुँचकर तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेते हुए शहीद होने वालों को खिराज पेश किया। सीनियर बीजेपी कायद मुरलीधर ने पार्टी ऑफिस में जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए बताया कि बीजेपी का इंतखाबी मंशूर अवाम बिलखुसूस गरीब अवाम की मफादात को देखते हुए जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी जीएचएमसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए पुराने शहर की तरक्की के लिए कई इक़दाम करेगी। उपल एक्साइज पुलिस ने एचएमटी नगर नाचारा में बावासूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ममनुआ ड्रग्स पाउडर जब्त किया और इस सिलसिले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि इस रैकेट में मुलविस तीसरा शख्स मफरूर बताया गया है। मानिकिया लाराव कोटिरेड्डी को हिरासत में लिया गया, जबकि वेंकटेश्वर राव मफरूर है। मज़कूरा मुलज़िमीन के कब्जे से 40 लाख रुपये मालियती ड्रग्स पाउडर बरामद किया गया। రాత్రి 10:30 గంటల సమయంలో అనుమానాస్పదంగా ఒక 2 వ్యక్తులని గుర్తించి వారిని సెర్చ్ చేసినప్పుడు 1 కిలో అల్పాజలం
మత్తు పదార్థం దొరికింది. వారిని ప్రీవియస్ అఫెండర్స్గా గుర్తించినాం. ఒకరు మాణిక్యాలరావు, ఇంకొకరు కోటిరెడ్డి. ఈ కోటిరెడ్డి అనే వ్యక్తి ఇక్కడికి ఖరీదు చేయడానికి వచ్చినట్టు అర్థమైంది. వారిని ప్రశ్నించినప్పుడు ఇది బాలానగర్ ఏరియాలో ఒక అనాథరైజ్డ్ గోడౌన్లో చిన్నపాటి కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టి తయారు చేస్తున్నట్టు మాకు ఆధారాలు పూర్తిగా తెలిసినాయి. ఇమీడియట్గా వెళ్ళి ఐడెంటిఫై షెడ్ 13 బాలానగర్లో సెర్చ్ చేస్తే ఒక 4 kgs ప్రాసెస్డ్ ఆల్ప్రాజోలం దొరికింది. అదేవిధంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ముడి పదార్థాలు, కెమికల్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ అక్కడ అందుబాటులో కనిపించినాయి. టోటల్గా ఆ ఎంటైర్ యూనిట్ ఈజ్ అన్లైసెన్స్డ్ యూనిట్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో ఉన్నట్టు అర్థమైంది. యూనిట్ని మొత్తం సీజ్ చేశాం. అదేవిధంగా వాళ్ళిద్దరిని అరెస్ట్ చేసి ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాం. ఆ యూనిట్ని నెక్కంటి వెంకటేశ్వరరావు అని ఒక ప్రీవియస్ అఫెండర్. हफ्तेवार तुर्की हिंद के ज़ेर एहतमाम डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस की तहनीती तकरीब व मुशायरे का इनेकाद 28 नवंबर बरोज़ हफ्ता 8 बजे शब उर्दू मस्कन खिलवत में अमल में आएगा। तहनीती तकरीब की सदारत प्रोफेसर मजीद बेदार करेंगे, जबकि मुशायरे की सदारत मसरूर आबिदी की रहेगी। डॉक्टर जहांगीर एहसास तहनीती तकरीब की निज़ामत, जबकि सरदार असर मुशायरे के नाजिम रहेंगे। कन्वीनर ताहिर रोमानी एडिटर तुर्की हिंद हफ्तेवार ने शिरकत की गुजारिश की है। इस मौके पर प्रोफेसर फातिमा परवीन तुर्की हिंद की जानिब से डॉक्टर मोहम्मद गौस पर मुरत्तिब करदा ख़ास नंबर की रस्म रोनुमाई करेंगी। GHMC इंतखाबात में वोटिंग फ़ीसद में इजाफे की गर्ज से इलेक्शन कमीशन की जानिब से कई एक इक़दामात किए गए हैं। इस सिलसिले के तहत आवाम में शऊर बेदार करने की गर्ज से रूबी चैनल से वाबस्ता सहाफ़ियों ने अपने तौर पर एक मुख्तसर क्लिप तैयार की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इस क्लिप में आवाम से अपील की गई है कि वो अपने वोट की अहमियत को समझें और वोटिंग को यकीनी बनाएँ। अवामी मफाद में रूबी चैनल के नाज़रीन के लिए मज़कूरा मुख्तसर वीडियो अपील पेश की जा रही है। हम वोट क्यों दें? वोट देने से क्या मिलेगा? मैंने आज तक वोट नहीं दिया। हमारे परेशानियां हमको बहुत है, अब वोट डालने के लिए कौन जाएगा? कौन 2 घंटे लाइन में ठहर कर वोट देगा? वोटिंग के दिन तो छुट्टी होती है, घर में बच्चों के साथ रहेंगे। हम वोट नहीं दिए तो इलेक्शन नहीं होता क्या? क्या फायदा वोट देने का? वोटिंग के दिन तो घर वालों के साथ पिकनिक का प्लान है। मेरे से वोट देना नहीं होता भाई। मैं एक वोट नहीं दूंगा तो क्या होगा? अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही कहते हैं, लेकिन आप अगर ऐसा सोचते हो तो बहुत बड़ी गलती पर हो। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका घर, आपकी गली का रास्ता, इन सब का ताल्लुक आपके वोट से है। क्योंकि जिस सड़क पर आप चलते हैं, जो पानी आपके घर तक पहुंचता है, जो लाइट आपके घर को और आपके रास्तों को रोशन करती है, ये सब आपके वोट देने की वजह से ही मुमकिन है। जिंदगी की उलझनों में कभी आपने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि जिस गली में आपका मकान है वो गली आपके हल्के की है, और जो गली आपके हल्के की है वो हल्का आपके शहर का है, वो शहर आपकी रियासत में है, और जो आपकी रियासत है वो इस मुल्क का हिस्सा है, और ये मुल्क आपकी पहचान है। जिस तरह जिंदगी में वक्त की अहमियत है, उसी तरह इलेक्शन में आपके वोट की भी अहमियत है। ये मत सोचो कि आपके वोट ना देने से किसी का क्या नुकसान होगा, बल्कि ये सोचो कि आपके वोट देने से पूरी सोसाइटी का फायदा होगा। इसके बावजूद भी अगर आप वोट नहीं देते तो आप अपने मुखालिफिन को आगे आने का मौका देते हो। वोट किसको देना है ये सवाल दूसरा है, लेकिन वोट देना जरूरी है। ये आपकी पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि वोट देने का मतलब सिर्फ वोटिंग मशीन पर बटन दबाना नहीं, बल्कि वोट देकर आप ये साबित करते हैं कि आने वाले 5 सालों में आप कितनी तरक्की चाहते हैं। वोट देने की आपको हर तरह की सहूलत मौजूद है, लेकिन फिर भी आपको लाइन में ठहर कर थोड़ी बहुत तकलीफ या परेशानी होती है तो उसे बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि चंद लम्हों की परेशानी आपके इत्तेहाद के सामने कोई माने नहीं रखती। और जमहूरियत में सिर्फ एक वोट की ही ताकत है जो आपको एक जिंदा कौम बना सकती है। अपने हल्के के वोटिंग परसेंटेज में इजाफा कीजिए, इसलिए वोट देने में लापरवाही मत कीजिए। और आज तक अगर आपने कभी वोट नहीं दिया है तो अपनी सोच को बदलिए और वोट देने के लिए जरूर जाइए। वोट देने के लिए जरूर जाइए।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने घासी बाजार और शारी बंडा डिवीजन का किया पैदल दौरा। कई इंतखाबी जलसों से खिताब। चार्जशीट वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ पेश की जानी चाहिए। रियासती वजीर KTR का बीजेपी पर जवाबी वार। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की चंद्रायन गुट्टा हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में इंतखाबी मुहिम। मुकामी आवाम से मुलाकात। मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील। मलकपेट, बहादुरपुरा और दीगर हल्कों में मजलिसी कायदीन की जानिब से बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में मुहिम जारी। घर घर पहुँच कर आवाम से मुलाकात। खुफल शिकनी की वारदातों में मुलविस बैन रियासती मुलजिम गिरफ्तार। कई रियासतों में हुई वारदातों में मुलविस होने का इंकशाफ। SOT बालानगर जोन की कार्रवाई। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने मोटर बाइक्स के सरखे मुलविस 3 रुकनी टोली को किया गिरफ्तार। 10 मोटर बाइक्स की गई बरामद। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।